أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سب بہنیں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ آج بھی دیکھو ہم ہر ہفتے جو ہے جمعہ کے دن جو جڑتے ہیں، تھوڑی دیر کی کلاس ہوتی ہے اور اسی نیت سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کچھ ایسی باتوں کو جانیں اور بس ریوائز کرے، دل کی باتوں کے ساتھ شیئر کرے الحمدللہ سے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جو بات ہم یہاں کر رہے ہیں یا ہم جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہو، ہمیں نفع دے الحمدللہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا میری بہنوں، میں سوچ رہی تھی یہ ٹاپک رکھوں یا نہیں رکھوں، بہت سوچ رہی تھی کچھ الگ رکھا جائے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہمارا دعوت کا کام مکمل ہوا تھا، ہے نا۔ الحمدللہ سے دعوت کا ٹاپک سب کو امید کرتی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی نیو بہن جڑی ہے جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو بتاتے چلو الحمدللہ دین کے راستے میں کیسی دعوت دی جائے، اس کے لیے کیا کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، وہ تمام باتیں ہم نے پچھلے ہفتے کی کلاس میں سیکھی تھی۔ اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم ایک بہت پیاری مسجد کا ذکر کریں گے، اور میں چاہوں گی سب بہنیں جو ہے اس پر توجہ دیں اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جو موجودہ حالات ہمارے چل رہے اللہ کے حکم سے، اب سب جانتے ہیں ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، بہت سے لوگ الگ الگ ملکوں میں، لیکن ایک خاص جو ہے بہت زیادہ جو ہے ذکر آتا ہے، بہت زیادہ ہمارے دعاؤں میں جس کا حصہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے یہاں پر اس کی فکریں کرتے ہیں، ہے نا الحمدللہ۔ تو وہ آتا ہے ماشاءاللہ فلسطین کے بارے میں آتا ہے، مسجد الاقصیٰ کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں معلومات سب بہنوں کو ہے، سب کو اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں یاد ہے، کچھ باتیں ہمیں نہیں پتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش اور فکریں کریں گے، اور امید کروں گی سب بہنیں ان باتوں کو یاد رکھیں، مختصر طور پر، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ہم کچھ بات کریں گے اس کے بارے میں، ہے نا، لیکن سمپل سی باتیں ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے الحمدللہ۔ اب مسجد اقصیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ پوائنٹ ریوائز کریں گے، اور میں چاہوں گی آپ بہنیں بھی مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں، کیونکہ بہت سے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم ہے، اور بہت سی ایسی بہنیں ہیں شاید جن کو اس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے پہلی پوائنٹ آتی ہے ہمارے لیے الحمدللہ کہ یہ 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ 3 کون سی بابرکت مسجد ہے؟ آپ بہنیں جو چیٹ پہ لکھ سکتی ہے چیٹ پہ لکھے الحمدللہ اس کے بارے میں، تاکہ ہمارا بھی ریویژن ساتھ میں ہو سکے، سب بہنیں جو ہے وہ اپنا بھی حصہ لگائیں اس میں، ہے نا۔ تو سب سے پہلی بابرکت مسجد ہمارے لیے کون سی آتی ہے درجات میں؟ تو وہ الحمدللہ کعبۃ اللہ آتا ہے نا الحمدللہ سے۔ اس کے بعد مسجد نبوی آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ مسجد جو ہے اقصیٰ آتی ہے نا، ماشاء اللہ سے مسجد اقصیٰ جو ہے ہمارا آتا ہے۔ اب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم جو ہے موقع ملتا ہے حج اور عمرہ کے لیے جانے کے لیے، تو 2 بابرکت مسجدوں میں تو ہم جاتے ہیں، وہاں عبادتیں کرتے ہیں، لیکن مسجد الاقصیٰ جو ہے وہاں پر ہم نہیں جڑ پاتے، وہاں جا نہیں پاتے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس تیسری حرمت والی جگہ پر بھی جو ہے جانے کا موقع عطا کرے الحمدللہ سے، ہے نا۔ تو یاد رکھنا ہے نارملی، کیونکہ ہماری زبان سے ہمیشہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ مکہ کی مسجد میں جانے مل جائے، اللہ کا مکہ جانے کا موقع ملے، اللہ مدینہ جانے کا موقع ملے۔ اب ہماری دعائیں ادھوری رہے گی تو ہمارا کہاں سے ہوگا نا۔ تو ہم انشاءاللہ اس مسجد کا بھی ذکر اپنی دعاؤں میں کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے وہاں کے حالات بہتر ہوں، وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ حالات بہتر کرے الحمدللہ سے، اور ہمیں بھی جو ہے اس میں اپنا حصہ لگا سکے انشاءاللہ۔ الحمدللہ تو امید کروں گی یہ پوائنٹ سب بہنیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ سے۔ اس کے بعد الحمدللہ زمین پر یہ دوسری سب سے پرانی مسجد ہے، مطلب
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद नबवी तो हिजरत के बाद बनाई गई। मस्जिद नबवी जो है वो हिजरत के बाद उसकी तामीर की गई, लेकिन काबतुल्लाह और मस्जिद अक्सा नबियों के जमाने से है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये वो सबसे पुरानी मस्जिदों में भी इसका जिक्र आता है माशाअल्लाह से, अल्लाह का फजलो करम, है ना। और एक और चीज, हम मुसलमानों का सबसे पहला किबला कहाँ था? यहाँ पर जो आता है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो किबला था उस वक्त हमारा, वो जेरूसलम ही था, मस्जिद अक्सा की तरफ ही था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इबादत करते काबतुल्लाह के यहाँ से, तो हमेशा इसके बारे में आता है कि काबतुल्लाह को बीच में रख के वो जेरूसलम की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ जो है रुख करके वो नमाज पढ़ा करते थे, वो इबादत किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको याद होगा कुरान में आया है आयत के बारे में, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए मक्का से मदीना की तरफ, तो अब क्या हुआ? काबतुल्लाह तो जो है वो सामने नहीं था, और मदीने से मस्जिद अक्सा की तरफ जब रुख किया जाता है तो मक्का जो है बीच में नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है आसमान की तरफ देखते थे। क्यों? तो वो इंतजार करते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हो जाए और काबतुल्लाह की तरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह रुख करने की इजाजत मिल जाए माशाअल्लाह से। तो यहाँ पर फिर बाद में जो है आयतें भी नाजिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन उससे पहले किबला क्या था मुसलमानों का? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा था। माजरत चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पर जो है अल्लाह के फजलो करम से मुसलमानों का पहला किबला था माशाअल्लाह से। उसके बाद जब आयतें नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला रुख बदला, तमाम सहाबाओं ने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इताअत की, और बिना सवाल के उसी वक्त सब ने जो है किबला रुख बदला अल्हम्दुलिल्लाह से। ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी माशाअल्लाह से, है ना। और माशाअल्लाह जो भी मुसलमान उस वक्त थे उन्होंने जो है फरमाबरदारी की, अल्लाह के हुक्म की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की। तो ये भी हमें सीखने को मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मिराज के सफर का खास हिस्सा है, दोनों का मतलब इसरा और मिराज का। क्यों इसरा का? इसलिए क्योंकि मक्का से लेकर जेरूसलम तक का जो सफर है उसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसरा कहा जाता है। यानी मक्का से आपका जो है सफर शुरू हुआ और वो जाकर मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल हुआ, वो इसरा का सफर रहा जिसका जिक्र आता है कुरान में। और अल्हम्दुलिल्लाह मिराज का सफर जो था वो जो है वो मस्जिद अक्सा से शुरू हुआ और सातों आसमान के ऊपर अल्लाह से मुलाकात तक के लिए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां से वापसी हुई थी। लेकिन उससे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह वहीं पर जो है ना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, इसी मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबियाओं की इमामत की थी। सुभान अल्लाह। सोचिए, यानी ये मस्जिद कितनी खास होगी कि वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा रहे और उनके पीछे कौन नमाज पढ़ रहे? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो ये मस्जिद की अहमियत हमारे लिए बढ़ जाती है अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये नबियों का शहर रहा है। अब नबियों का शहर रहा है तो हमें नहीं समझ में आता हम क्या कह रहे हैं ना, मतलब किस तरीके से। जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कई सारे नबियों का वक्त वहीं पर गुजरा माशाअल्लाह से, है ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ छोड़ कर गए थे उनकी वालिदा के साथ में, उसके बाद जो भी नबी अलैहिस्सलाम आए वो इसी मस्जिद की तरफ भेजे गए हैं, मस्जिद अल अक्सा की तरफ। क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मिलकर जो है काबतुल्लाह की तामीर की। और उसके बाद अगर किसी नबी को भेजा गया तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, है ना। लेकिन उनके दरमियान यानी इसहाक अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक अगर जिक्र आता है तो उनमें से सब अंबिया अलैहिस्सलामों का जो आना हुआ है वो इसी मस्जिद की तरफ हुआ है माशाअल्लाह से, है ना। इसीलिए इसे नबियों का शहर भी कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमें समझ में आती है माशाअल्लाह से बात। और उसके बाद जो है हम नमाजें जो पढ़ते हैं ना मेरी बहनों, हम अपने घरों में, जब हम औरतों को तो चलिए अल्लाह ने आसान किया है
کہ मस्जिदों में जाके पढ़ने का हुक्म नहीं है, हम पर फर्ज नहीं है, हम अपने घरों की सहूलत में पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का सवाब होता है ना। तो वैसे ही तीनों मस्जिद का जिक्र आता है, सिर्फ एक नहीं, तीनों मस्जिद का। सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा अजर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह में नमाज पढ़ने का है। उसके बाद अगर किसी का आता है वो मस्जिद नबवी का आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे पोजीशन पर, तीसरा जिसका अगर किसी का आता है अल्हम्दुलिल्लाह से, यानी हमारी आम मस्जिदों के मुकाबले सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड जो कहते हैं आप, अजर जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी जो है हमारे लिए, सवाब जो है वो मस्जिदुल हरम में है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मस्जिद नबवी है, और तीसरा दर्जा आता है मस्जिदुल अक्सा में है। सुभान अल्लाह, है ना। तो ये तीसरा सबसे हाईएस्ट वहां पर जो है अजर का जो है जिक्र आता है माशाल्लाह, हदीसों से इसकी रिवायत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम बातें क्यों रिपीट की जा रही है, क्योंकि आज वहां पर जो हालात हो रहे हैं उस पर हम सब फिक्रमंद है, हम सब गौर व फिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ हमारे लिए उसकी अहमियत को जानना भी बहुत जरूरी है ना। ये टॉपिक तो वैसे कई वक्त तक लेने का है, 1 घंटे 2 घंटे का टॉपिक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सरसरी तौर पर इसके लिए करें कि अल्लाह ने वक्त मौका मिलेगा तो और डिटेल में इंशाल्लाह जानेंगे और समझेंगे, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के साथ साथ जो है मस्जिद अक्सा का जिक्र अल्लाह के फजलो करम से कुरान में भी आता है ना, माशाअल्लाह से। तो जो भी चीज कुरान से जुड़ती है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलामों का शहर है, तो उसकी अहमियत पता चल गई। और यहाँ पर जो है कुरान में भी अगर जिक्र आ रहा है मस्जिद का, तो उसकी अहमियत और हमारे लिए बढ़ गई है ना, माशाअल्लाह से। कुरान की मैं आयत लेना चाहूंगी यहाँ पर, उसके आगे मैं बढ़ूंगी इंशाल्लाह बाद में। मैं एक आयत शेयर कर देती हूँ ताकि हम समझ सके इस बात को। 1 मिनट में आया को शेयर कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करी सब बहनों की स्क्रीन पर इसकी तस्वीर आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सब बहनों को दिख रहा है। मुझे सिर्फ चैट पे बहनें सिर्फ जवाब दे दे, मुझे पता चल जाए सबके लिए स्क्रीन पर आ गया है कर। अल्हम्दुलिल्लाह से। तो सूर्य बनी इसराइल जो है अल्हम्दुलिल्लाह 17वां जो हमारा सूरा आता है ना माशाल्लाह से, उसकी ये पहली आयत ही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक है वो जो अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिदुल हराम से मस्जिद तरफ, किसके तरफ? मस्जिदुल अक्सा, वो जो बरकत दी हमने जिसके इर्द गिर्द, ताकि हम दिखाएं उन्हें अपने निशानियों में से, सुनने वाला खूब देखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जो अभी हमने जिक्र किया कि कुरान में इसका जिक्र आता है, तो सुभान अल्लाह, देखिए नाम के साथ आ रहा है ना। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मस्जिद का जिक्र आ रहा है, कि बताया जा रहा है कि फला जगह की मस्जिद थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह देते कि मस्जिद हरम से जो है मस्जिद की तरफ, दूसरी मस्जिद की तरफ गए, तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफी था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर नाम के साथ इसका जिक्र किए हैं, तो हमारे लिए इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं इस आयत में, कि जो बरकत दी अल्लाह ने उस जहर को, है ना माशाल्लाह, उसके इर्द गिर्द भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद को, उसके इर्द गिर्द भी सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकतें अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशक अल्लाह ही है जो क्या है, खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। और क्यों ले गए थे अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना। कई मर्तबा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहते, है ना, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहते तो वहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह मिराज का सफर शुरू हो सकता था। अल्लाह से मुलाकात के सफर के लिए मस्जिद हरम से भी डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजाम हो सकता था। अब इसमें हम जो है, मैं ये नहीं कह रही कि यही वो वजह रही होगी, लेकिन एक वजह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में भी हमें दे रहे हैं ना। क्या कहा अल्लाह ने? ताकि हम दिखाएं उन्हें अपने निशानियों में से। सुभान अल्लाह। देखिए ना, ये एक सफर हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत भी है, निशानी भी है, मौजिजा भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और आजमाइश भी है। क्यों? हमारा हमारा ईमान होना इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मक्का से जेरूसलम और वहां से सातों आसमान के ऊपर अल्लाह से मुलाकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया और वो पहुंचे। वहां से वापस भी, और कैसे लोग कहते नहीं वो सिर्फ रूहानी तौर पर गए थे, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिस्म के साथ, यानी पूरे साबित इंसानी जिस्म के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर गए थे माशाअल्लाह। और अल्लाह जब यहाँ कहता है कि मैं अपने निशानी दिखाने के लिए उनको वहां मैंने भेजा था, तो इससे हमें भी सीखने को मिलता है। तो सोचिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो निशानी उनको बताने के लिए, क्योंकि वो भी एक मौजूदा वो भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, नबियों का शहर है, वो मस्जिद बड़ी खास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए भी होता है कि अल्लाह ये हमें भी मौका मिले, है ना, तो हम दुआएं करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोलेगा, और अगर हमारे लिए नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रास्ते खोलेगा कि वो तमाम जाकर के मस्जिद अक्सा में इबादतें कर सके, उस खास शहर को, नबियों के शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जा सके, उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सके जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत की थी। तो ये बहुत खास है मेरी बहनों हमारे। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है तस्वीर में आप बोलोगे बाजी, नॉर्मली जब हम ऑनलाइन देखते हैं तो वो गोल्डन गुम्बज दिखता है, गोल्ड होता है ना। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं बताते चलूं कि वो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जो गुम्बज आप देख रहे हो ये दरअसल मस्जिद अल अक्सा है, और जो वो दूसरा आपको नजर आता है वो उसी कंपाउंड के अंदर का हिस्सा है, लेकिन वो नया हिस्सा बनाया गया। जैसे आज भी हम देखते हैं हरम की तरफ जो है मस्जिद का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, मस्जिद मस्जिद नबवी का हिस्सा बढ़ाया जा रहा है माशाल्लाह से, है ना। तो ऐसा इसके बारे में भी आता है। और कितने लोग कहते भी है कि भाई इरादा है दुश्मनों का कि इसको जो ढा करके जो है क्या किया जाए, वो अपने मंसूबे पूरे कर सके, लेकिन उसी लिए वो लोग बहकाने के लिए गोल्डन डोम जो है वो नजर में रखते हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे कभी वो लोग इसको नुकसान पहुंचाने वाले हो तो मुसलमानों को इसकी खबर भी ना हो। तो हमें याद रखना है कि वो पूरा हिस्सा मस्जिद अक्सा का है, और खास करके ये हिस्सा जो आता है ये पुरानी मस्जिद अक्सा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब बहनों को अब तक जो भी बातें हमने यहाँ पे की समझ में आई होगी। तो मैं दोबारा से अपने उस वाले पेज पर आ जाती हूँ जो हमारे पॉइंट्स वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेयर कर लेती हूँ कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए जो जो पॉइंट है ना मैंने शॉर्ट में बताया, मैंने कहा ना हमारा जो दिल की बातों की क्लास होती है वो आधे घंटे की ही होती है, उसके बाद हम आप सब बहनों से बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो जरूरी होता है हमारा कि मैं जितने शॉर्ट में और अच्छे से आपको बता सकूं मैं कोशिश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबके स्क्रीन पे पॉइंट्स आ गए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पॉइंट तक हमने चले कि मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में भी है, और इसके बारे में आता है हम सुभान अल्लाह कि दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता और इसी के करीब मारा जाएगा। अब दज्जाल का भी एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब दज्जाल के बारे में जितना जानते हैं और सीखना है समझना है ताकि उससे हम बच सके, है ना। तो यहाँ पर जो है हमें बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि दज्जाल जो है वो वहां दाखिल नहीं हो पाएगा, वो कोशिश करेगा लेकिन वो दाखिल नहीं हो सकेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी शहर के करीब करीब जो है वो मारा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये फितना फसाद, देखो लोग कहते हैं दज्जाल आ गया, दज्जाल आने वाला है, वल्लाहु आलम जब वो आएगा तो क्या माहौल होगा, फितने फसाद का माहौल होगा। वो मुसलमानों को, ईमान वालों को गुमराह कराने की कोशिश करेगा, अलग अलग चीजों से दलीलों से वो क्या करेगा, हमारे जहनों के साथ खेलेगा। तो हमें अभी से अपने, देखिए जब पता चलता है ना कि दुश्मन आने वाला है, तो आपको पता है पहले के दौर के लोग और अभी भी जैसे हमारा मॉडर्न जमाना चल रहा है, अभी भी जब पता चलता है ना कि भाई दुश्मन का अटैक होने के चांसेस भी है, आप यकीन जानो पूरे मिलिट्री नेवी एयरफोर्स क्या करती है, तैनात हो जाती है, वो जो है लग जाती है काम पर। माजर चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, वो तैयारी में लग जाती है। क्यों कि भाई वो हमला करे या ना करे वो दूर की बात है, लेकिन उसके हमले से पहले हमारी तैयारी हो जानी चाहिए कि उससे हमें नुकसान ना पहुंचे। तो वैसे ही दज्जाल आएगा हमारे वक्त में, या हम उस वक्त तक मर जाएंगे हमें नहीं पता, हम रहे हम ना रहे, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमेशा क्या किया है, हमें जो है हमारे दुश्मनों से आगाह किया है
जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनके बारे में बता दिया है, ताकि हम क्या ना रहे, बेखबर ना रहे, हम गाफिल ना रहे, हम तैयारियों में लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। दज्जाल का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें कई मर्तबा मिलता है। तो क्यों, उस दौर में तो दज्जाल नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी सहाबाओं ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी थी, है ना, अपने ईमान को मजबूत करते थे, सीखते थे अल्हम्दुलिल्लाह दज्जाल से कैसा बचा जाएगा। वो तमाम चीजें क्यों, ताकि जो है वो भले उस वक्त आए या ना आए, हम अपनी तैयारी कर रखें, क्योंकि इसमें फायदा हमारा ही है माशाल्लाह से। हमारा ईमान मजबूत होगा तो दज्जाल तो आगे आएगा, जब भी आएगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरे गुनाह या जो दुनिया की बुराइयां हैं, अंधेरे हैं, उससे हम बचने वालों में से हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान वालों के लिए मेरी देखो, दुनिया में सबको आज मस्जिद अल अक्सा का पता है। आज कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो फलस्तीन फलस्तीन के रहने वाले और क्या वहां हो रहा है नहीं जानता। मस्जिद अक्सा के बारे में भी उनको खबर है, लेकिन इसके बाद मालूमात होना अलग है, और ईमान वालों के लिए मालूमात होने में फर्क है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो वहाँ लोग हैं माशाल्लाह से मेहनत कोशिशें कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां जुल्म हो रही है। तो ये दौर पहले भी गुजरा है, पहले भी बनी इसराइली पर जो थे, जो ईमान पर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन पर भी जो है दुश्मन मुसल्लत थे। कोई एक दौर बता दे जहां ऐसा ना हुआ हो, है ना। हमेशा जो है दुश्मन ने, गुनहगारों ने क्या करने की कोशिश की, मुसलमानों को, अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने की, उन्हें परेशान करने की कोशिश और फिक्र की, और बहुत मंसूबे लगाए, ताकत कुव्वत माल सब कुछ लगाया। लेकिन आप और मैं जानते हैं, हम गवाह हैं इस बात के, है ना। उम्मत मोहम्मदिया जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कल भी गवाह होगी और आज भी गवाह है, कि हमें समझ में आया, हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन कितना ही ताकत कुव्वत ना क्यों ना रखता हो, कितना ही माल क्यों ना रखता हो, वो शिकस्त खाएगा, है ना। गलबा कौन पाएंगे, जीतेंगे कौन, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीजों से उभर के कौन आएंगे, तो वो ईमान वाले हैं, है ना। ईमान वाले ही होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर बात पर हम गौर व फिक्र करें मेरी बहनों। बेशक वहां के लिए दुआ करेंगे, कोशिशें करेंगे, लेकिन सिर्फ दूर दराज के हिसाब से नहीं, आस पास के हिसाब से भी। और सबसे ज्यादा मेहनत तो खुद पर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम ये समझ पा रहे हैं कि नतीजे वैसे ही उतरते हैं आसमान से जैसे हमारे अमाल जाते हैं। यानी जो मेरे हाथों ने आगे भेजा, वही हमारी तरफ पलट कर आता है। आज अगर हमारे भाई बहनों पर, हमारी आने वाली नस्लों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, कहीं ना कहीं शायद हमारी ईमान की कमी है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, हमारी दुआएं जो है हम नहीं कर पा रहे, हम कोशिशें नहीं कर पा रहे। हमें एक मजबूत कौम बनना है ना। इल्म हासिल करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। हम गुलामी से निकले, हम अपने आप को कमजोर और है ना मजलूम बनना छोड़ दे, हम अपने आप को मजबूत बनाए, इल्म हासिल करे, ताकत हासिल करे माशाल्लाह। और यही वो तरीका होगा। आप सबको याद होगा कुरान में सुभान अल्लाह जब जिक्र आता है बनी इसराइलियों का, जहां अल्लाह ने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया, तो वो पीछे हट गए, तब वो पीछे हट गए। लेकिन वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्हें हुक्म दिया गया कि शहर में दाखिल हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सजदे करते हुए और जिक्र करते हुए, हित्ततुन अल्लाह से बख्श दे ये कहते हुए, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन लोगों ने क्या की, नाफरमानी। आज अल्लाह ने भी इस दुनिया में हमारे लिए खोल दिया है पूरी जमीन को। अल्लाह ने हमें रिस्क का इंतजाम इस दुनिया में करके दिया है, अल्लाह की तरफ से हमें बस क्या करना है, हमें इस दुनिया में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआएं करनी है, अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है, और क्या करना है, सजदे करना है। सजदा मतलब क्या, झुक जाना है अल्लाह के फैसलों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में सही तरीके से जीना है। हमारा होता है हम अकेले की जिंदगी जीते हैं, अपनी इबादत अपने आसपास का गौर फिक्र करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं। सुभान अल्लाह। कुरान में एक और आयत का जिक्र आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमें बताया है कि जमीन जो है अल्लाह ने तमाम मखलूकात के लिए बनाई है, सबके लिए, है ना। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर एक मखलूक के लिए, जमीन में जो भी मखलूक बसती है सबका हक उसमें है। तो हम इस बात का भी ख्याल रखें। तो यही मेरी कोशिश होगी तमाम बहनों से कि हम मस्जिद अक्सा को अपनी दुआओं में जो है वहां उस पर, वहां पर जाने पर
वहाँ की इबादतों के लिए याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह से, वहाँ के लोगों के लिए कसरत से दुआएं करें, और अपनी ईमान पर हम मेहनत मशक्कत करें, कोशिश फिक्रे करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मौका दे कि तीनों बाबरकत मस्जिदों में इबादत का मौका हम सबको मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो भी टॉपिक था सब बहनों को समझ में आया होगा। कोई सवाल या डाउट हो तो इंशाल्लाह दुआओं के बाद मैं सबके सवाल लेने की कोशिश करूंगी, और आप बहनें भी जो बताना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जिक्र करिएगा इसके बारे में, क्योंकि देखिए मेरी बहनों, आज हम जो है कहीं ना कहीं हमारी मस्जिदें वैसी आबाद नहीं, जहाँ मस्जिद अक्सा का जिक्र करते हैं ना, वही हमारी आसपास की मस्जिदों का भी हमारे दिलों में जिक्र होना चाहिए। आज हम कहते हैं हाँ है मस्जिद, जाते हैं हमारे मर्द हजरात, लेकिन उसको आबाद करने के साथ साथ उसको संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी, उसका गौर फिक्र करने की जिम्मेदारी भी हमारी, है ना। ज्यादा मस्जिदें बनाने की भी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल हमारे लिए है कि जो मस्जिदें हमारे लिए बनी हुई हैं, जिस किसी ने भी बनाया हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में, हम कोशिश करें कि उसकी हिफाजत हो, हम उसका ख्याल रखें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग तरीके से है, मिल के समझ के हिकमत से काम लेना है, क्या किया जाए कैसे किया जाए। और मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए होती है, किसी एक के लिए, किसी एक फिरके के लिए, बस चंद लोगों के लिए नहीं है। आप सबको पता होगा मस्जिद हरम में जो है गैर मुसलमानों की इजाजत नहीं है, वहां वो एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन वही मस्जिद नबवी की तरफ मदीने में जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको इजाजत है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी गैर मुसलमान, है ना, जो इस्लाम पर ना थे, हो सकता है बनी इसराइलियों में से थे, यहूदी थे, नसारा थे, मुशरिक थे, है ना, कोई भी थे, लेकिन वो आते थे, मुलाकात करते थे, सवाल करते थे, समझने की कोशिश करते थे। आज हम अपने घर में अपनी मस्जिदों में मुसलमान मुसलमान को दाखिल होने नहीं देता है, गैरों को कहाँ से देगा। हम जब अपने मस्जिदों के दरवाजे खोले ना मेरी बहनों, तो ऐसे खोले कि गैर मुसलमान भी अगर उधर से गुजरे तो उसका भी दिल करे कि मैं देखूं तो सही मुसलमान करते क्या है अंदर। और जब वो हमारी इबादतों को देखेंगे, हमारे तरीके को देखेंगे, है ना, वो माहौल को देखेंगे, आप यकीन जानो उनके दिल नर्म होंगे। कई लोगों से हमें जानने को मिलता है, आप कितनी सारी स्टोरीज देख सकते हो रिवर्ट्स की, वो अपनी बयानात बताते हैं भाई कहाँ से नरमी आई। तो कितने कहते बोले आपके यहाँ पर बस मैंने मस्जिद में लोगों को सजदा करते हुए देख लिया सबको। बोले उसमें क्या समझ में आया आपको? तो बोले वो मैंने देखा कि वो सारे के सारे एक साथ सजदा कर रहे। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि एक ही ऑफिस का बॉस भी साथ में खड़ा है, उसके ऑफिस का एम्प्लॉय भी, मतलब जो काम करता है ना, मैनेजर वगैरह कोई होगा, वो भी खड़ा है। और उसी के बाजू में उस ऑफिस का प्यून या सफाई कर्मचारी है, वो भी एक साथ है तीनों, और तीनों में कोई फर्क नहीं। वहां कोई ये पीछे नहीं बोल सकता, लिबास वगैरह से शायद समझ में आ जाए किसी को, वरना कोई ये नहीं कह सकता कि ये मालिक है, ये काम करने वाला जरा हाई पोजीशन वाला है और ये कम कमाने वाला है, नहीं। क्यों? सब एक हो गए, सब एक जैसे हैं। उनका खड़े होना, हाथ बांधना, झुकना, सजदा करना, सब एक जैसे हो गए। तो उस चीज ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में वो घर किया कि ये कैसा मजहब है जहाँ सबको बराबर दर्जा दिया जाता है। वरना जहाँ मैं जहाँ से हूँ वहां सबको एक जैसा दर्जा नहीं है, सबके साथ जो है अलग अलग होता है, भाई फला तुम इस ग्रुप के हो, फला तुम उस ग्रुप के हो करके बांटा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल में नरमी आती। कहीं पर जिक्र आता है, एक ने अंदर आकर देखने की कोशिश की भाई मुसलमान क्या वहां पे मंसूबे बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत बात पहुंची है ना लोगों तक कि ये लोग गलत काम करते हैं, मुसलमानों के बारे में लोगों ने ऐसी गलत फहमी फैलाई हुई है। वो आकर के देख रहा है, वो कहता है भाई इतना शांत माहौल, कोई जो है कोने में बैठ के अपनी किताब पढ़ रहा है, कोई बैठ के किसी को सिखा रहा है, कोई आ रहा है अपने इबादत कर रहा है जा रहा है ना। उस वक्त शायद नमाज का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन आते हैं ना लोग जो लेट आ जाते हैं, ये नफिल पढ़ते हैं माशाल्लाह से, तो वो बस वो देख रहे हैं कि भाई इनका तो बहुत सिंपल और इतना अच्छा है। मैं अंदर आया, मुझे मुस्कुरा कर देखा, मुझसे आके बातचीत की, मुझसे पूछा कुछ मदद चाहिए क्या, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अखलाक हमारे अंदर आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम इसकी भी कोशिश और फिक्र करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यहाँ बैठने को सुनने को कबूल करे, और अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से समझ कर इन बातों पर अमल करने वालों में से बना दे। आमीन।
اللہ ہم تجھ سے بہت سی دعائیں کرنا چاہتے ہیں اللہ، ہر بہن ہر روز کوشش کر رہی ہے کہ خود کے لیے بھی مانگتی ہے الحمدللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مانگتی ہے، اور یا اللہ خاص کر کے فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی اللہ ہماری دعائیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سے بہتر تو جانتا ہے کس کے لیے کیا خیر ہے الحمدللہ، کس کے لیے کیا نقصان ہے، یا اللہ بے شک ان پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں ہم اس کی آسانی کی تجھ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ تجھ سے کوئی شکوے شکایت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ، یا اللہ تو جس کو بھی جیسے بھی چاہے ویسے آزماتا ہے، تو ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، یا اللہ اللہ ہم تیری صرف فیصلے سے اللہ راضی ہے، لیکن اللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تیری رحمت کو بھی جانتے ہیں، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تکلیفوں میں سے یا اللہ تو نے اپنے بندوں کو ہمیشہ باہر نکالا ہے، یا اللہ ظالموں کا خاتمہ ہوا ہے، اللہ ظالم ہمیشہ ہلاک ہوئے ہیں، یا اللہ رب العزت جس کے حق میں جو بہتر ہو یا اللہ اس کے حق میں وہ فیصلے کر دے، اگر وہ ظالم اللہ ہدایت کا حقدار ہوگا تو اللہ اسے ہدایت عطا کر دے، تاکہ وہ بھی اللہ تیرا بندہ بن جائے، دین اسلام پر آ جائے، اور اگر اللہ ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اللہ وہ گنہگار ہی رہیں گے، مجرم ہی رہیں گے، تو اللہ ان کی طاقت قوتوں کو ختم کر دے، یا اللہ انہیں بھی دنیا کے لیے ایک مثال بنا دے کہ جو بھی ظالم ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، جو اللہ دین اسلام پر نہیں ہے، وہ کیسے ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک ہونے کی اللہ توفیق عطا کر، اللہ آج بکھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم ایک ہو جا اللہ، ایک رب کے بندے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک کتاب پر چلنے والے ہو جائے اللہ رب العزت، ہم ایک جٹ ہو جائے اللہ، اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا کر اللہ رب العزت، آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔